provide almost free law test prep training to the kids across the country. And today in this session, we'll be dealing with a very important topic when it comes down to the critical reasoning for law entrance examination. That is paragraph and conclusion. Over to you, sir. Yeah, thank you, Harsh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Gungun, Ashish, नवदिशा, गार्गी, सबके नाम ले सकता हूं अभी क्योंकि जनता ही थोड़ी सी है. All right. So, as Harsh sir mentioned, the topic that is a critical reasoning. Good afternoon, Gungun. Right? And as you see in the new pattern of CLAT, right? So, how many questions in new pattern of CLAT? कोई बताएगा? Yes. So now जो आपका legal part है, the another dominating part in your CLAT paper, that is decision making. अगर हम reasoning देखें, we can break into parts. One, decision making, another analytical reasoning, AI, जिसमें आएगा आपका blood relation, direction, right, coding, decoding. इसमें आपका they are testing your analysis. Of course, analysis is required in everywhere. In this particular segment, they are testing your decision making, right? And to understand entire critical reasoning, statement, inference, cause and effects, arguments, actions. So, आपको we have to understand what is statement, conclusion, statement, arguments, statement, course of actions, and cause and effects, right? और यही आपका if you going to appear for the UPSC, ये आपका GS4 पेपर बनेगा जिसको हम बोलेंगे ethics, integrity and aptitude, right? So it's extremely important, right? So for this, no formula, no writings is needed, just understanding, discussion, debate is needed. Fine. So are ready to debate and to understand realistic way how all these things are functioning in our daily life, right? So in first class, we'll try to understand all these and connection between all these, and we'll solve some couple of questions, maybe from CLAT, from CAT, from GMAT, because now analysis is the level of CLAT, because अभी तक आपके यहाँ पे there are 200 questions was there. Now there are 150 questions in 120 minutes. We are expecting level of the question little good. So आपका cramming नहीं, आपकी understanding is needed, right? So if I ask straightway question, what do you mean by assumption? पहले इन चीजों को समझते हैं, then we'll move further. What do you mean by arguments? So what do you mean by assumption? Is the possibility. और लास्ट क्लास में भी डिस्कस पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. गुनगुन ये सुनो, शुभांगी ने बताया था कि प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी. इसका मतलब यू आर टेलिंग assumption also probability. ये सुनो, इट्स वेरी लॉजिकल. सी द अगर हम ठीक से काम करें, इफ यू प्रैक्टिस लिटिल एंड यू अंडरस्टैंड द एसेंस, तो प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चन के ठीक होने की बहुत ज्यादा है. दे आल्सो नीड अ गुड लॉजिक. ऑलराइट. सो जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, एक कोई हरियाणा दिल्ली हाईवे पे एक ढाबा था और उस ढाबे पे एक मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, राइट? और वहां पे एक इंसान कॉफी चाय पीता हुआ, और लगभग इंडिया मैच हारने वाली थी, एंड हरभजन सिंह खेलने आए और ये इंसान चीखा कि अब इंडिया मैच जीत जाएगी. एक बूढ़े काका थे, रामलाल.
ये चीख है कि अब इंडिया मैच जीत जाएगी, तो रामलाल का अजम्पशन क्या होना चाहिए? हरभजन सिंह इज अ गुड बैट्समैन और हरभजन सिंह अ बैड बैट्समैन। बैटिंग करने के लिए आए हरभजन सिंह, यस करेक्ट। तो हाँ बैट्समैन। अब आशीष देखो तुम यहाँ पे गलती कर सकते हो, बिकॉज ट्राई टू यूज योर सेंस। आपको अजम्पशन, देखो अजम्पशन इज वेरी सब्जेक्टिव और स्पेसिफिक, इज स्पेसिफिक, क्योंकि अजम्पशन हमें किसका लेना है? आशीष का अगर हम अजम्पशन लेंगे तो उसके मतलब हो सकता है कि आशीष बोले कि ही इज नॉट अ गुड बैट्समैन, बट स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट थी या आपका सीन क्या है? रामलाल ने बोला कि अब इंडिया मैच जीत जाएगी, और खेलने कौन आया? फैक्ट क्या था? हरभजन सिंह। तो डजंट मैटर हरभजन सिंह इज अ गुड बैट्समैन और बैड बैट्समैन, व्हाट इज assumption of the Ramlal? That हरभजन सिंह इज अ गुड बैट्समैन। तो assumption है तो पॉसिबिलिटी, एंड पॉसिबिलिटी टाइम के किस सेंस में? अगर हम पॉसिबिलिटी देखें लिटिल मोर लॉजिकल, पॉसिबिलिटी टाइम के किस सेंस में है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने भी बात की थी फ्यूचर, and future is unknown. The n number of possibilities are there. So assumption is not only possibility, is a favorable possibility. जैसे we all preparing for CLAT, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना, बिकॉज बोथ आर इन फ्यूचर। सिलेक्शन इज इन फ्यूचर एंड फेल्योर इज ऑल्सो इन फ्यूचर। सो इफ आशीष इज प्रिपेयरिंग फॉर और शुभांगी इज प्रिपेयरिंग फॉर CLAT, तो what is assumption of Shubhangi or Ashish? They will clear the exam or they will not clear the exam. No. तो अब एक बात बताओ, if both assumptions are there, Ashish, she will clear the exam, and दूसरा है she will not clear the exam, तो आप क्या बोलोगे? दोनों टिक करोगे? देखो फैक्ट क्या है, देखो अब देखो दो तीन चीजें समझ लेते हैं कि इनमें क्वेश्चंस क्यों गलत होते हैं। अगर ये समझ में आ जाए why and what, तो कैसे क्वेश्चन ठीक करना है हम अपने आप समझ जाएंगे। ये सुनो, what are the questions and why the questions become wrong of the critical reasoning, because लोगों को डर इसमें यही होता है कि क्वेश्चन तो सब लोग अप्रोच करते हैं, राइट, बिकॉज उसमें कोई फॉर्मूला हम लोग जरूरत नहीं होती बहुत, राइट, लाइक इट लुक्स लाइक अ जीएस और समथिंग। तो अपीयर्स अटेम्प्ट सब करते हैं, बट इसकी प्रोबेबिलिटी इज कि अगर अभी मैं तुम्हें आपको एक टेस्ट दूं and 10 questions solve करो, the probability is more than 6-7 questions are wrong, right? तो why question are become wrong? Because जब भी कभी assumption की बात आती है तो हम हमेशा अपना assumption लगाते हैं। जैसे आशीष ने बोला कि नो, क्वेश्चन पूछा कि हरभजन सिंह एंड बैट्समैन, नो इज अ लाइक अ बॉलर। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फैक्ट क्या बोला है, मुझे देखना है कि किसने बोला है। अगर रामलाल बहुत खुश हो गया तो इसका तो अजम्पशन है, मुझे किससे मतलब है। जैसे अब क्रिकेट मैच का ये मैं एग्जांपल लूं, हाँ समझता है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। अब एक बॉल उसने थ्रो की बॉलर ने, राइट, तो इफ आई सी फ्रॉम बॉलर साइड, व्हाट इज अजम्पशन? ही विल टेक द बिग विकेट और बैट्समैन सिक्स मार देगा, यू आर बॉलर। तो व्हाट इज अजम्पशन फ्रॉम बॉलर साइड? आपने एक बॉल फेंकी तो आपका अजम्पशन क्या होगा? अब इस बॉल पे सिक्स पड़ेगी या आप विकेट ले लोगे। एग्जैक्टली अच्छा, अब जो बैट्समैन है उसने बॉल हिट की तो उसका अजम्पशन क्या है? कैच पकड़ा जाएगा या नॉट आउट रहेगा या अच्छे रन बनाएगा, राइट? तो बॉल एक ही है, मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत अगर मैं कुछ तुम्हें की पॉइंट्स दूंगा जिससे बहुत कम टाइम में यू आर एबल टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, राइट?
तो इन assumption kind of questions जब आपको होता ना कि और एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऐसा नहीं है कि ये assumption के क्वेश्चंस हैं, ये आर्गुमेंट के क्वेश्चंस हैं। जब पैराग्राफ्स आर गिवन, जैसे आपके टॉपिक भी लिखा होगा, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ assumption, पैराग्राफ like course of action, तो सब स्टेटमेंट इज गिवन फॉर पैराग्राफ, आपको बताना है दिस इज अ वैलिड assumption और दिस इज अ इनवैलिड assumption, दिस assumption implicit or not implicit, this argument is strong or not strong, this course of action is valid or not valid। तो assumptions वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत प्यार से समझो। the first point is we assumption changes seeing the situations। okay, देख एक स्टेटमेंट के, एक एक्ट के या फैक्ट के देयर n नंबर ऑफ assumptions आर पॉसिबल। समझो पहले तो n नंबर ऑफ assumptions आर पॉसिबल। Exactly, you're right, Ashish. If situation change, assumption also change। And देखो आपको सिचुएशन में देखना पड़ेगा आप किसका assumption ले रहे हैं। बहुत बार when you are assuming something, तो आप अपने आप को भी इंक्लूड कर लेते हो, your data, your understanding, right? क्योंकि तुम्हारा किसी के बारे में, right? तो इसमें क्या करना है, we have to behave as a गिरगिट। गिरगिट मतलब जो रंग बदलता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली जाए, जिस सिचुएशन बात बोली जाए, थोड़ी देर के लिए हम वो बन जाएंगे। जैसे अगर बोला गया आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, अब जैसे तुमने देखा होगा एक T20 वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया मैच हार गई थी एंड महेंद्र सिंह धोनी वाज द कैप्टन। इतना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, राइट? एंड 2020 वर्ल्ड कप था, मैच था, और अराउंड 18th ओवर में इंडिया की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज सिंह को खेलने के लिए भेजा। समझो, अब अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज सिंह को खेलने के लिए भेजा और युवराज सिंह उस टाइम अपने फॉर्म में नहीं थे, राइट? तो अब बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोगों ने पैर पटका होगा, फॉर नॉनसेंस व्हाट दिस मैन डिड, बट भेजा किसने? यू हैव टू सी द स्टेटमेंट। आपने नहीं भेजा भाई साहब, भेजा किसने है? महेंद्र सिंह धोनी ने। डिसीजन किसका है? महेंद्र सिंह धोनी का। तो अजम्पशन किसका वैलिड होगा, महेंद्र सिंह धोनी का या हमारा? फैक्ट किसके पास? एक्शन। एग्जैक्टली ऋषिकेश, अब तुम शायद पॉइंट पकड़ रहे हो। तो महेंद्र सिंह ने युवराज सिंह को खेलने के लिए भेजा, तो टू महेंद्र सिंह, युवराज सिंह इज अ गुड बैट्समैन और युवराज सिंह मैच जिता देगा या मैच हरा देगा। और सच्चाई ये थी कि इंडिया मैच हार गई थी। एक ओवर तो उसने एक ओवर में तो 2-3 रन बनाए और अगले ओवर की पहली बॉल पे कैच दे बैठा। तो अब जो ऑडियंस मैच देख रही थी उसका अजम्पशन अब तो ये हरवाएगा, सही हो गया, बट ये वैलिड अजम्पशन नहीं था। समझो, राइट? तो क्योंकि भेजा किसने? महेंद्र सिंह धोनी ने। तो थोड़ी देर के लिए फील करो, अगर आप कैप्टन होते और आप युवराज सिंह को भेज रहे हो तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा होगा? ये मैच, ये आपका डिसीजन ठीक है, ये डिसीजन ठीक नहीं है। रिजल्ट क्या होंगे? रिजल्ट तो फ्यूचर में होंगे। सो assumption is a possibility which we take favorable, positive in the sense, क्योंकि एग्जाम फ्यूचर में तो फेल्योर और सक्सेस पास दोनों है। बट इफ आई एम मेकिंग एफर्ट्स, इफ आई एम ट्राइंग, इफ आई एम गोइंग टुवर्ड दिस, तो फॉर श्योर आई एम नॉट गोइंग टू फेल्योर। हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग फॉर द अनसक्सेस, आई एम गोइंग फॉर सक्सेस। तो मेरा अजम्पशन क्या होगा? मुझे सक्सेस मिलेगी या फेल्योर मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। दिस अजम्पशन इज वैलिड। इज द क्लियर नाउ? तो अजम्पशन में तो पहला जो पॉइंट रखना है दिमाग में वो ये कि अजम्पशन की सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को फील करो दैट यू आर, एंड एग्जाम ये अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन डालेगा। समटाइम क्वेश्चन बिलोंग टू द डीप इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, रियल टाइम सिचुएशन, फ्रॉम फिलोसफी। पर्सन, स्टूडेंट, क्या आप में मेच्योरिटी है? यू कैन assume, you have assumption, you have a decision making
of a like a 30-year IAS ऑफिसर और 45-year IAS ऑफिसर, तो इतनी एज में वो थोड़ी सा आप में डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे. Are we together till now? Right. So क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इन like question in this format, in question below the one statement is given. वो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट शुरुआत में मैंने छोटे स्टेटमेंट रखे सो दैट आपको बेसिक प्रोसेस समझ में आया कि अजम्पशन काम कैसे कर रहा है. देन यू कैन अप्लाई इन द बिग पैराग्राफ्स आल्सो, राइट. और ये वेरी कर सकता है, इसमें आप डेटा पढ़ लोगे, ठीक है. वन स्टेटमेंट गिवन फॉलोड बाय टू और मोर देन टू assumption, that depends. If assumption one implicit, second not implicit, आंसर A मार्क करोगे. सेकंड इम्प्लिसिट, फर्स्ट नॉट इम्प्लिसिट, B मार्क करोगे. इधर इम्प्लिसिट फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई भी ठीक हो जाए, C मार्क करोगे. नीदर फर्स्ट और सेकंड, D मार्क करोगे. बोथ वैलिड, E मार्क करोगे. लेकिन ये कोई समझने वाली बात नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्शन चेंज हो सकता है, राइट. अभी तक के लिए इंस्ट्रक्शन. तो रीड फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी कैसे अज्यूम करते हैं. तो स्टेटमेंट है, पैराग्राफ है, द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक pulled the emergency brake to avoid hitting the auto rickshaw which suddenly came in front of the truck. Right. Okay. Rishabh, I think your signal. Am I audible properly? Except Resham. Resham, you can re-log in if you can. Yes, Rishikesh, loud and clear. Thank you very much. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है रेशम मैं तुम्हारे आंसर को डिक्लाइन कर रहा हूँ. आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लो. एंड अगर इफ यू आर यूजिंग द डेटा ऑफ फोन, तो कम से कम डेटा यूज किया करो, क्लास के लिए बचाया करो थोड़ा सा. ओके. एक आंसर आया अभी. अब देखो फिर से मैं स्टेटमेंट, अब इससे इस क्वेश्चन से हम बहुत क्लियरिटी कर देंगे अजम्पशन की. बी ओके. अब देखो, द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक. अब आपको थोड़ी देर के लिए फील क्या करना है ऋषिकेश, आप क्या हो, ड्राइवर. देखो कितना गंदा बनाया उसने. और देख, क्लास कंक्लूड होते होते दूर जाना. आशीष, द ऑटो रिक्शा विच, क्या क्या बोला आपने, स्टेयर, दूर जाना. The auto rickshaw driver may be able to steer his vehicle, अपना दूर ले जा सके, steer his vehicle away from oncoming truck, changing the directions, right. B. अब देखो, अब है क्या, जब भी कोई आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपके दिल में अजम्पशन बनने लगता है पहले से ही, समझे. अब देखो, आप एक्चुअली केस किसका लिया गया, अब ट्राई अगर थोड़ा सा समझे तो इसी क्लास में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी क्रिटिकल रीजनिंग की, इफ यू लिटिल डीपर. अब बात किसकी हो रही है यार, बात हो रही है ट्रक ड्राइवर की. बट आशीष इज नॉट द ट्रक ड्राइवर, गुनगुन इज नॉट ट्रक ड्राइवर, राहुल मिश्रा इज नॉट ट्रक ड्राइवर, राइट. The driver of a huge truck pulled the emergency brake to avoid hitting the auto rickshaw which suddenly came in front of the truck. अब ट्रक लेके जा रहे हो, अचानक आपके सामने ऑटो रिक्शा आ गया and you applied a brake. होता क्या है, when you take action, तो उससे पहले जो आपके बैक ऑफ माइंड में चल रहा होता है, that is your assumption. Yes sir. First you think
and then you deliver. First you assume, then you deliver. तो क्वेश्चंस के लास्ट में अगर आप why लगाओ, why he applied a break, तो why के रिस्पॉन्स में जो आपका आंसर आएगा, that would be your assumption. Yes sir. अगर बहुत मोटा मोटा देखें तो राइट, why he applied a break, तो कुछ ने सोचा होगा ना, कुछ बैक ऑफ माइंड में चला होगा, राइट. तो why के रिस्पॉन्स में जो भी आंसर आएगा that must be your assumption. जैसे why you are preparing for CLAT, you want to crack it, you want to be legal advisor, you want to join, you want to be corporate lawyer, you want to be judge, ये सारे assumption valid है. Yes sir. तो मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट के अंदर n number of assumptions are possible. अगर मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दूंगा तो assumption चेंज हो जाएगा, राइट. So we have to understand the essence of the language. अब क्या बोला, the driver of a huge truck pulled the emergency brake to avoid hitting the auto rickshaw which suddenly came in front of the truck. Now maximum student mass, the truck driver may be able to stop the truck before it hits the auto rickshaw. This assumption is for sure valid. क्योंकि अगर why लगाओ तो उसने क्यों ब्रेक अप्लाई किया. अच्छा एक बात बताओ, उसने क्यों ब्रेक अप्लाई किया. He want to stop the truck or he want to avoid the collision, avoid the accident. सच्चाई क्या है, he applied the brake. But मैं पूछूंगा why, तो किस लिए ब्रेक अप्लाई किया. He want to stop the truck or he want to avoid the collision. Exactly शुभांगी, he want to avoid the accident, right. हाँ, even stop the truck to avoid the collision, right. तो ट्रक को रोकने का भी ऑब्जेक्टिव ट्रक रोकना नहीं है. ऐसा नहीं कि नया ट्रक लेके आया और छैया छैया करता जा रहा है, रुक रहा फिर चला रहा है और देख रहा है कि लाइक सही ब्रेक है कि सही ब्रेक नहीं है. इज नॉट एक्सपेरिमेंटिंग. अब टुगेदर तो हुआ क्या कि जैसे क्वेश्चन फैक्ट देखा, आपके दिल में आपने एक अपना अजम्पशन बना लिया कि ही अप्लाइड द ब्रेक. बिकॉज जब भी तुमने ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश की, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या है, यू वांट टू स्लो डाउन द स्पीड. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ व्हेन यू अप्लाइड द ब्रेक यू वांट टू अवॉइड द कोलिजन. अब दोनों काम हो सकता है. एक, या तो आपके सामने जो इंसान आ रहा है, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या है, यू वांट टू स्लो डाउन द स्पीड, यस और नो. अब दोनों काम हो सकते हैं. अब जब स्पीड आपकी स्लो हो गई तो सामने वाले को मौका मिल सकता है वो आपके सामने से हट जाए, तो भी एक्सीडेंट बच जाएगा. या बिफोर हैंड, बिफोर एक्सीडेंट, या तो आप रुक जाए या तो ये रुक जाए. इज द क्लियर नॉट, राइट. तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर मे बी एबल टू स्टीयर हिज व्हीकल अवे फ्रॉम ऑनकमिंग ट्रक. इससे भी तो एक्सीडेंट बच जाएगा, इससे भी तो कोलिजन. जैसे तुम रियल टाइम सिचुएशन देखो, जब तुम किसी बाइक या एक्टिवा या किसी चीज से जा रहे होते हो और सामने कोई अचानक आ गया, तो क्या करते हो, ब्रेक मार देते हो और आंखें बंद कर लेते हो कि तुमने ब्रेक मार दिया और अब देखा जाएगा. अब ये जाना और उसके काम जाने, राइट. भिड़ेगा तो भिड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं. यू अप्लाइड द ब्रेक एंड यू क्लोज योर आइज, और या तुम हैंडल मोड़ देते हो, तुम हैंडल भी मोड़ते हो, यस और नो. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, लेट्स एनालाइज दिस. ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, बिकॉज जैसे मैंने बोला ट्रक ड्राइवर, तुमने अपने आप को ट्रक ड्राइवर नहीं बनाया, तुमने बनाया कि ओके अप्लाइड द ब्रेक, इट मींस यू वांट टू स्टॉप. तो ये तो अजम्पशन, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद स्टबर्न नहीं हो जाना है कि इसका ये अजम्पशन होगा. आप अजम्पशन पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके दिमाग में. व्हाई ही अप्लाइड द ब्रेक, व्हाई अप्लाइड द ब्रेक, बिकॉज ही वांट टू अवॉइड द कोलिजन. इससे भी अवॉइड कोलिजन हो सकता है और इससे भी एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता है. तो बोथ अजम्पशंस आर वैलिड. गुनगुनाओ टुगेदर. तो both assumptions are valid. This is not the important. Why both assumptions are valid? Because आपको एक नया क्वेश्चन डील करना है. Assumption समझ में आ रहा है? Alright. Right? और हमारे दिमाग की एक आदत है, जैसे स्टेटमेंट देखेगा assumption बनाने लग जाएगा. Be careful with it. और एक और ट्रिक समझ सकते हैं,
हमको ये देखना है कि अजम्पशन वैलिड है या अजम्पशन वैलिड नहीं है। समझो, जो आपने एक्शन लिया है वो क्यों लिया है? बिकॉज जैसे आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो व्हाट इज अजम्पशन? यू आर कमिंग इन दिस क्लासेस, यू प्रिपेयरिंग, यू स्पेंडिंग सम टाइम, व्हाट इज अजम्पशन? यू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, दिस इज अजम्पशन ना, कैन आई नॉट? तो अब अगर मैं बोलूं यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, assumption is you'll get bad marks in the exam, ये वैलिड assumption है क्या? आप सारे क्लासेस में इसलिए आ रहे हो कि आपके बहुत गंदे नंबर हैं, इसलिए आप क्लास, दिस assumption is valid or not? बताओ, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। रॉन्ग। अब देखो, इसका मतलब हम क्या करें कि अगर हमने assumption हटा दिया, तो जो भी, अगर हमें चेक करना है कि माय assumption इज वैलिड और नॉट वैलिड, तो एक बहुत की पॉइंट्स, बहुत एक की पॉइंट पिक कर सकते हो कि हम assumption की मीनिंग को 360 डिग्री रिवर्स कर दें। सुनना बहुत प्यार से, 360 डिग्री रिवर्स कर दें, राइट? इफ द स्टेटमेंट बिकम फनी, मतलब यूजलेस, इसका मतलब assumption वैलिड है। एग्जाम्पल समझाता हूं। The driver of a huge truck pulled the emergency brake to avoid hitting the auto rickshaw which suddenly came in front of the truck. Assumption: the auto rickshaw driver may be able to steer the vehicle away from oncoming truck. अब हमें इसमें डाउट है कि यार सही कि नहीं सही है, तो मैं इसकी मीनिंग को चेंज कर दूंगा कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर में नॉट बी एबल टू स्टीयर हिज व्हीकल अवे फ्रॉम ऑनकमिंग ट्रक, और ट्रक वाला इसको ठोक देगा। अब उसने ब्रेक अप्लाई किया, करने का कोई मतलब था? अब ये काम करने का अगर उसको लगता कि ट्रक, ऑटो रिक्शा वाला सामने से ऑटो रिक्शा नहीं हटा पाएगा और मैं इसको उड़ा दूंगा, तो ये ब्रेक अप्लाई करने का मतलब था। क्या ये स्टेटमेंट जो थी, इसका कोई भी मीनिंग है अगर मैं इसकी मीनिंग को 360 डिग्री चेंज करता हूं? यस नो? सुन भी रहे हो? इसकी मीनिंग को मैं 360 डिग्री चेंज कर दूं, राइट? तो क्या करना है, अगर अजम्पशन की को मैंने 360 डिग्री चेंज किया एंड दिस इज यूजलेस, डैमेज, राइट? तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, ये करके दिखाओ। The doctor warns the patient against any further consumption of alcohol if he desired to get cured from the ailment and live a longer life. The doctor warned the patient against any further consumption of alcohol if he desired to get cured and live a longer life. Two. Very good. एक आंसर आया है। देख, बहुत प्यार से, इसमें ऑब्जेक्टिव इज नॉट एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, आपको एसेंस समझ में आया है और ये आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन अपने आप, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आफ्टर द क्लास, यू कैन प्रैक्टिस। बोथ, गुनगुन का है बोथ। शुभांगी तुम कहाँ हो आज? व्हाई नॉट रिस्पॉन्डिंग? आशीष का है टू। टू मतलब बोथ और सेकंड टू ओनली, दोनों है तो बोथ लिखोगे, टू नहीं लिखोगे। आशीष का है टू, ऋषिकेश का है वन, शुभांगी का है सर। तो ऊपर बोथ लिखा है, ओ शुभांगी, सॉरी शक्तिमान, बोथ आर वैलिड। ओहो, शुभांगी सबसे पहले आया है। नवदिशा गुलाटी, बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो तुम नवदिशा। जम्मू कश्मीर गई थी घूमने, लद्दाख और चाइना। ऑलराइट, अब देख,
The doctor warns the patient against any further consumption of alcohol if he desired to get cured from the ailment and live a longer life. अब यार डॉक्टर ने पेशेंट को कुछ कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, है ना? कुछ एज्यूम किया होगा, कुछ दिल में रखा होगा कि हाँ ये सही होगा. तो अब अगर देखो ट्रिक देखो ना यार, why he said, why के रिस्पॉन्ड में जो भी आएगा that must be assumption. The patient may follow the doctor's advice, and stop consuming alcohol. Right? तो देखो फर्स्ट करेक्ट है कि फर्स्ट करेक्ट नहीं है, दोनों छोड़ो. आप बताओ फर्स्ट करेक्ट है कि नहीं फर्स्ट करेक्ट है? गुनगुन का करेक्ट है. हाउ मेनी फर्स्ट करेक्ट है, हाउ मेनी नॉट करेक्ट? कमी लोग हैं, फटाफट रिस्पॉन्ड कर सकते हो, सीख ज्यादा सकते हो. करेक्ट है, करेक्ट. क्योंकि अगर डॉक्टर को लगता कि पेशेंट तो पियक्कड़ है और ये तो पीता ही रहेगा, इसको छुड़वाया ना जा सकता है, और हो सकता है ये भी कि छोड़ देता है ये. अगर डॉक्टर को लगता, समझो बहुत प्यार से, अगर डॉक्टर को लगता ये हद पियक्कड़ है और ये मेरी बात नहीं समझेगा, तो कम से कम ये वाला काम तो ना करता. ये सुनो, जैसे कई बार तुम्हारे पापा तुम्हें समझाने के लिए अपने दोस्त, फ्रेंड, पड़ोसी को बुला के लाते हैं कि समझाओ इसको. इसका मतलब व्हाट इज अजम्पशन ऑफ फादर, कि उनकी बात तुम समझोगे या उनकी बात नहीं समझोगे. और जब कोई उनका फ्रेंड कोई तुम समझाने आता है तुम्हें, तुम्हें लगता है कि यार क्या पका रहा है, इससे अच्छा तो मेरे पापा ही समझा देते. राइट? बट पापा बुला के कौन लाया है पड़ोसी को, बुला के कौन लाया अपने फ्रेंड को तुम्हें समझाने के लिए? पापा. तो उनका अजम्पशन क्या है? तुम उनकी बात नहीं समझ रहे, और शायद इसकी बात समझ जाओ. कैन यू अंडरस्टैंड नॉट? इज द क्लियर? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अजम्पशन है तो पॉसिबिलिटी, बट इन पॉजिटिव सेंस. तो डॉक्टर को लगता है, डॉक्टर को लगता होगा, भले ही ये पीता रहे, भले ही सोचते कि डॉक्टर काम ही कहना, मैं तो अपना पीता रहूंगा, ये पेशेंट कुछ भी करे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, घर पे जाके पिए जाकर के, यहीं पे लेके बॉटली आया हो, पीने लग जाए. बट डॉक्टर का जो स्टेटमेंट है, इसका अजम्पशन नहीं होगा कि ये पीता रहेगा और इसको लगता है कि पीना छोड़ देगा. अब टुगेदर नॉट. तभी तो ये स्टेटमेंट डिलीवर किया, तभी तो डॉक्टर ने पेशेंट को बोला स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल. अब टुगेदर नॉट. राइट? और इसमें मैं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझो. टू मी वॉट एवर इज इन फ्यूचर इज मे, नॉट विल. होता क्या है कि विल जो वर्ड है, विल बी, तो हम बोलते हैं कि श्योर होगा, बट फ्यूचर श्योरिटी नहीं है. समझो बात प्यार से. लेकिन जो हम जिस थॉट प्रोसेस हम जीते हैं, जैसे हमने सुबह सोचा सुबह हम ट्यूशन जाएंगे, चले गए, कॉलेज जाएंगे, चले गए, बर्थडे में जाएंगे, चले गए, पापा से साइकिल मांगेंगे, मांग ली, किसी चॉकलेट लेंगे, हो गया. तो इतने सालों से बहुत बार जो आपने सोचा है वो चीजें हो गई हैं. तो आपको लगता है कि अब भी जो सोचोगे वो 100% चीजें होंगी. समझो. राइट? बट ये पॉसिबिलिटी थी या श्योरिटी थी? टू मी, अगर आप देखा, अगर मेरे अपने एक्सपीरियंस से देखो, तो विल वर्ड फ्यूचर के लिए यूज ही नहीं करना चाहिए. हाँ, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ ऐसा होगा, डर कम लगता है. कैन आई नॉट? तो यहां, और अजम्पशन के केस में मे ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसको लगता है ऐसा. द पेशेंट मे फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एंड स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो पहला भी करेक्ट है. द डॉक्टर मे बी एबल टू क्योर द पेशेंट फ्रॉम द एलिमेंट इफ द पेशेंट स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल, भी उसने अल्कोहल पीने के लिए मना किया है. राइट? अच्छा, एक चीज और है, हो सकता है कि अल्कोहल का इसके डिसीज से कोई मतलब ही ना हो.
लेकिन जिस डॉक्टर ने तुम्हें मतलब इस डॉक्टर से है जिसने इस पेशेंट को अल्कोहल लेने से मना किया है, राइट? और आप ये थोड़ी देर के लिए आप ये डॉक्टर हो, तो आपने अगर मना किया तो आपको लगता है, आपने मना तो इसलिए किया है बिकॉज का ट्रीटमेंट करो, आपको लगता है आप इसको ठीक कर लोगे, भले ही ना ठीक कर पाओ। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा चेंज करूं इस assumption को और मैं करूं द डॉक्टर may not be able to cure the patient from the ailment if the patient even stop consuming alcohol, is valid or not valid? ये valid assumption होगा? That would be valid. ऋषिकेश कह रहा है valid, शुभांगी कह रहा है no sir, valid। गुनगुन का भी valid। एक बात बता, गुनगुन तू डॉक्टर है और तूने पेशेंट को बोला कि स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल, आपने मेडिसिन भी दी है। जैसे होता है ना कि आपको डॉक्टर के बारे में मेडिसिन देता है और कुछ प्रिकॉशन भी बताता है, तो डॉक्टर का अजम्पशन क्या है कि अगर ये प्रिकॉशन ले लेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, या ठीक हो जाएगी या नहीं ठीक होगी। राइट, एग्जैक्टली। स्टेटमेंट बोला है द डॉक्टर वार्न द पेशेंट अगेंस्ट एनी फर्दर कंज्यूम अल्कोहल इफ डिजायर टू गेट क्योर फ्रॉम द एलिमेंट एंड लिव लॉन्गर लाइफ। इसका मतलब उसको लगता है, उसका अजम्पशन है, उसका थॉट प्रोसेस है डॉक्टर का कि अगर ये अल्कोहल नहीं लेगा तो ये ठीक हो जाएगा। किसका थॉट प्रोसेस है? डॉक्टर का। अब टुगेदर टिल नाउ। तो नहीं ठीक कर पाएगा, भले ही ना ठीक हो, बट ये डॉक्टर का अजम्पशन नहीं हो सकता। अब एक और समझना, जैसे बहुत बार डॉक्टर फैमिली वालों से किसी एक ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले बहुत सारे केसेस में सिग्नेचर करा लेते हैं। अगर इनको कुछ हो गया, कुछ हो गया मतलब समझते हो, मतलब जो चाहते थे वो नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया, अपोजिट हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, डॉक्टर साइन भी करा लेता है। एक बात बताओ, जब डॉक्टर साइन करा रहा है तो उसका अजम्पशन क्या है? इस पेशेंट को ठीक कर पाएगा या नहीं ठीक कर पाएगा, जब साइन करा रहा है। एग्जैक्टली आशीष। एंड व्हेन डॉक्टर इज इन ऑपरेशन थिएटर, तब क्या अजम्पशन है? ठीक कर लेगा, नहीं ठीक कर पाएगा। समझना कितनी थोड़ी सी चेंज। एग्जैक्टली, तभी तो ऑपरेशन कर रहा है वो, क्योंकि अगर उसको लगता है कि ठीक नहीं कर पाएगा तो कई बार डॉक्टर्स बोल देते हैं कि जाओ भाई किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, बोलते हैं ना। और जब डॉक्टर बोलते हैं किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, तो जो डॉक्टर बोल रहा है उसका अजम्पशन है कि हो सकता है कि मैं ठीक नहीं कर पाऊं, और हो सकता है कि वो ट्रीट करे वो ठीक हो जाए। बट उसने अगर मना किया तो उसका अजम्पशन वैलिड है, उसका अजम्पशन है कि हो सकता है कि मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊं। और अगर ऑपरेशन थिएटर में है तो डॉक्टर का अजम्पशन क्या है? उसको वो ठीक कर लेगा। आउट टुगेदर नॉट? यस नो? तो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो अजम्पशन आपका चेंज हो जाएगा। तो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट लैंग्वेज वेरी केयरफुली एंड वेरी प्रैक्टिकली। और अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस में फील दैट यू आर द पर्सन, यू आर इन द सिचुएशन, देन अज्यूम। आप करते, इसका मतलब दिस assumption is valid and this assumption is also valid, both valid। देखो ठीक करने लगे हैं। नेक्स्ट, the government has decided to distribute 3 kg of food grains to every family living below poverty line for the next 3 months at nominal price of ₹5 per kg। तो अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस डाले मैंने, कई सारे। The government has decided to distribute 3 kg of food grains to every family living below poverty line for the next 3 months at nominal price of ₹5 per kg। श्योर? शुभांगी देख लो एक बार। only two, only second, first is valid। okay, अब थोड़ी देर के लिए आप क्या बनाए गए हो?
क्योंकि पहले क्या बने थे आप? ट्रक ड्राइवर। फिर क्या बने थे आप? डॉक्टर। देख रहे हो कहां कहां टेस्ट कर रहा है आपको। स्टूडेंट आपको एक बार भी नहीं बनाया, पहले बनाया ट्रक ड्राइवर, फिर बने आप डॉक्टर। मैं बीइंग अ सिंपल स्टूडेंट कि आपका थॉट प्रोसेस एक डॉक्टर जैसा, एक ट्रक ड्राइवर जैसा भी, मतलब दूसरों की फीलिंग्स। एंड नाउ द गवर्नमेंट ओनली फर्स्ट करेक्ट। ओके शुभांगी। The government has decided to distribute 3 kg of food grains to every family living below poverty line for the next 3 months at nominal price of 5 rupees per kg. ये स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 3 kg ऑफ फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी सारी फैमिलीज को, और किस प्राइस पे? 5 रुपीज की प्राइस पे। अब ये जो कुछ कहा है, कुछ सोच के कहा होगा, ये सुनो। तो वो सोचना क्या ये हो सकता है, वो सोचना क्या ये हो सकता है, राइट? तो अब अगर तो बोल रहा है कि द गवर्नमेंट हैज इनफ स्टॉक टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स फॉर द इंटायर पीरियड। अच्छा, फॉर इंटायर पीरियड का मतलब फॉर द नेक्स्ट 3 months। जैसे भी लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए थे, जैसे EMIs के बारे में, राइट? तो इंटायर पीरियड का मतलब ये नहीं जिंदगी भर कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले तुम पैदा हो जाओ और मैं जिंदगी भर अफोर्ड करूंगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट 3 months की बात कर रहा होगा, राइट? क्योंकि स्टेटमेंट से अपना एक्सपीरियंस यूज करोगे बट उसमें अपने फैक्ट्स नहीं डालोगे। The government has enough stock to distribute food grains for the entire period. ये वैलिड तभी है जब ये वैलिड हो। क्योंकि अगर सोचो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास फूड ग्रेन्स ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि यू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स फॉर द 3 minutes, कितने कितने चोर लगोगे बोलते हुए, सोचो। Oh, Ashish करें सर, गवर्नमेंट हैव इनफ, इट कैन बी एक्सपोर्टेड, सो फर्स्ट इज नॉट वैलिड। नो, अभी कुछ में तुमने क्या किया, एक्सपोर्ट कुछ भी करोगे वो अलग बात है, बट द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 3 months के लिए, जैसे एक बात बताओ आशीष, तुमने बोला कि सर मेरे घर आना और आज मैं आपको डिनर कराऊंगा, ठीक है? तो हो तो ये भी सकता है कि तुम पड़ोसी की यहां जाके डिनर करा दो, राइट? या मुझसे बोलो कि सर बर्तन बहुत गंदे पड़े हैं, साफ कर लो जरा, राइट? और कुछ हेल्प कर दो, ये भी हो सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है। लेकिन आपने अगर इनवाइट किया है तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, या आपका अजम्पशन क्या होगा, आप मुझे डिनर कराओगे या नहीं कराओगे, आपके पास सफिशिएंट फूड होगा या नहीं होगा। जैसे कई बार क्लास में आपका बर्थडे है आशीष, और आपने बोला कि चलो सबको पिज्जा खिलाता हूं, राइट? तो आपका अजम्पशन क्या है, आपके वॉलेट में पिज्जा खिलाने के लिए पैसे हैं या नहीं है? राइट है। हो सकता है कि आप पॉकेट ऋषिकेश बोला जुगाड़ तो पक्का हो जाएगा। अब हो सकता है कि आप अपने पॉकेट में हाथ डालो और देखो कि लाइक पर्स ही नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन आपका अजम्पशन ये नहीं होगा, आपके अजम्पशन है कि जो भी पिज्जा खिलाने के लिए चीजें हैं वो मेरे पास होंगी। कितना अरेंज तो वो बाद में क्या करोगे वो अलग बात है, बट अगर तुमने किसी को कमिट किया है, जैसे बोला कि आओ मैं तुम्हें बुक्स दे दूंगा, जैसे तुमने एक क्लैट निकाल लिया और तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स थी, और किसी जूनियर ने तुमसे मांगा कि भैया आशीष कि आप तो यू गॉट अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और आप मुझे बुक्स दे दोगे, तुम बोलो हाँ हाँ गोलू पक्का घर पे आ जाना, मैं आपको बुक्स दूंगा, राइट? और जब घर पे गोलू लेने आया तो आपने बुक्स ढूंढी तो पता कि मम्मी ने तो बुक्स बेच करके सब्जी खरीद ली, मतलब बुक बेच करके नहीं, बुक सब्जी वाले को दे दी और कबाड़ में और सब्जी ले ली। बट जब आपने कमिटमेंट किया था, हो तो ये भी गया, जब आपने कमिटमेंट किया था कि घर पे आना मैं आपको बुक्स दूंगा, और बुक्स को आप खरीद के भी दे सकते हो,
तो आपका assumption क्या है, आपके पास sufficient जो बुक्स आपने कमिट की होंगी या नहीं होंगी, उस समय आपका assumption क्या है? आशीष समझ में आ गया है? तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत होगा, बहुत हल्की सी एरर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज आपने डेटा और यूज कर लिया। डेटा कौन सा यूज कर लिया कि गवर्नमेंट आउटसोर्स भी कर लेती है, बहुत बार आउटसोर्स किया है, बट ये फैक्ट में इसकी बात कहीं 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 कही गई है क्या? तो आपने आपने अजम्पशन तो इतनी स्टेटमेंट का लेना है ना भाई आशीष, जो क्वेश्चन चेंज कर देंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। देखो सिर्फ मैं आशीष को ही नहीं समझा रहा हूं, मैं आशीष के क्वेश्चन के डाउट को लाइक हैंडल कर रहा हूं, एंड ये सबके लिए है। ऑलराइट, तो इसका मतलब फर्स्ट अजम्पशन इज वैलिड, नॉट दैट आई एम टेलिंग। क्योंकि देखो एक ट्रिक भी तो तुम्हें दी है, बिल्कुल मैथमेटिक्स, बिल्कुल लॉजिक जैसा मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूं, क्या इसकी मीनिंग को चेंज करना भाई। गवर्नमेंट डोंट हैव स्टॉक। अब सोचो आशीष, तुम नेता हो और स्पीच दे रहे हो, थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं तो समझ में आएगा। या आर यू एबल टू सी मी? देख पा रहे हो मुझे? यस नो? आशीष तुम ऐसा स्पीच दे रहे हो कि इलेक्शन जीत गए हो, आई डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 months, राइट? और तुम्हारे मन में चल रहा है यू डोंट हैव इनफ स्टॉक, तुमको पता है यू डोंट हैव इनफ स्टॉक। इमेजिन कैसे लगोगे बोलते हुए, आशीष सोचो जरा। तुमको लगता है कि स्टॉक ही नहीं, राइट? और हो सकता है स्टॉक ना हो, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो सकता है कि एफसीआई वाले बोले कि सर कहां स्पीच दे के आ गए, वीट तो सारा सड़ गया इस बार हरियाणा में, राइट? ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाया, खराब हो गया। हो सकता है डेटा ये हो, लेकिन जब आप बोल रहे हो तो आपका ये अजम्पशन है कि आपके पास स्टॉक होगा। अब टुगेदर? करेक्ट। तो बहुत सुपरफिशियल नहीं मान लेना है कि हाँ चलो मान लेते हैं ये सही है। बिल्कुल देखो इसके आंसर्स भी बहुत लॉजिकल और इनके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी 100% है, प्रोवाइडेड हम लॉजिक ठीक बैठा पाए, अंडरस्टैंडिंग हमारी ठीक हो। ठीक है? अच्छा अब दूसरा देखो, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। Family living below poverty line may be able to afford to buy food grains at ₹5 per kg. अच्छा ये कितने लोगों ने सही टिक किया है? कितने लोगों ने सही टिक किया है ये वाला? करेक्ट है, ऋषिकेश का, गुनगुन का भी, शुभांगी का पहले तो ठीक था, बट इन्होंने इसको रॉन्ग बताया शायद। शुभांगी ये सुनो, देखो भाई एक बात बताओ, और ये सारी सोसाइटी अजम्पशन पे ही चल रही है। अगर देखो, द फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन मे बी एबल टू अफोर्ड टू बाय फूड ग्रेन्स एट ₹5 पर केजी। आपने 5 ही क्यों रखा? वाई नॉट 8, वाई नॉट 10, वाई नॉट 100, वाई नॉट 2? अच्छा विल बी, नो 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 नो, वॉट एवर इन द फ्यूचर। अभी मैंने समझाया शुभांगी, इफ यू आर कंफ्यूज इन विल एंड, एक बार बताओ, अगली सांस आएगी ये विल है या अजम्स में है? में। तो जब अगली सांस आएगी ये में है, तो वॉट एवर इन फ्यूचर दैट इज विद में, राइट? भाई जिसने डिसीजन लिया, और इसका मतलब अजम्पशन आप में कह रहे हो, इसका मतलब यू आर टेकिंग पॉजिटिव साइड ऑफ में, मतलब दैट इज विल। एग्जैक्टली। तो बिलीव, तो देखो ना, एक बात बताओ, जैसे शुभांगी कि तुमने देखा होगा जो फ्रूट सेलर्स हैं, अगर एक काफी एलिट कॉलोनी में जा रहे हैं, कभी पॉज कॉलोनी में जा रहे हैं, तो एप्पल्स लेके जाएंगे जो सबसे अच्छे होंगे, ₹200 पर केजी, ₹300 पर केजी।
राइट? ऑल वेजिटेबल्स गुड, कॉस्टली। कभी सोचा है वाई? क्योंकि ये फ्रूट सेलर भी अजम्पशन को खूब जानते हैं, क्योंकि इनका अजम्पशन है कि इस कॉलोनी में यही वेजिटेबल्स सेल आउट होंगी। वही फ्रूट सेलर जब स्लम्स में जाता है तो फ्रूट्स तो लेके नहीं जाता, वेजिटेबल्स भी सबसे सस्ती जो कहीं सेल नहीं हुई होती हैं, राइट? हो सकता है इस स्लम से कोई निकल के आए कि भाई फ्रूट्स क्यों नहीं लाए, राइट? बट ये फ्रूट लेके कौन नहीं गया? ये फ्रूट सेलर। तो इसका अजम्पशन क्या है कि यहाँ के लोग फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ वैलिड अजम्पशन, तभी तो सब्जी नहीं लेके गया, राइट? और जिस प्राइस पे रखा है, जैसे रखा है कि 20 रुपीज पर केजी से ऊपर वाली कोई वेजिटेबल नहीं लेके जा रहा है, इसका मतलब इसका अजम्पशन क्या है कि 20 रुपीज पर केजी पे लोग खरीद लेंगे। हो सकता है कि 20 पे भी कोई ना खरीदे, कुछ ऐसा हो गया हो, बट अगर ये लेके जा रहा है तो इसका मतलब इसका अजम्पशन क्या है कि 5 पे लोग खरीद पाएंगे या खरीद नहीं पाएंगे। अगर उसको लगता कि 5 पे भी खरीद नहीं पाएंगे तो 4 रखता ना। एग्जैक्टली, देख, इवन मेजॉरिटी विल नॉट बाय, आई एम टेलिंग, खरीद पाएंगे ना, एग्जैक्टली। तो अजम्पशन क्या हुआ? तो अब अगर तुमने रखा है 5 रुपीज पर केजी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको 3 केजी फूड ग्रेन देगी, तो इसका मतलब पहली बात तो उसका अजम्पशन है, उसको लगता है उसके पास सफिशिएंट स्टॉक होगा, एक। दूसरा कि 5 रुपीज पर केजी पे तो लोग अफोर्ड कर ही पाएंगे, तो हो सकता है अफोर्ड ना कर पाए। आई एम टेलिंग, फिर से देखो शुभांगी, जो तुम गलती तुमने की है, जिसने भी करी है कि ये वाला वैलिड नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि यार कैसे, कहाँ क्लियरिटी है, मे क्यों है? तो मे तो मैंने पहले ही बता दिया कि assumption में मे whatever with in future that is with may, right? So families living below poverty line may be able to afford to buy food grain at rupees 5 per kg. It is clear? शुभांगी, समझ में आ गया है, या तुमने बोला कि इतना समझा रहे हैं तो मान ही लेती हूँ, पर रहूंगी तो मैं जिद्दी अपनी जैसे है? ऐसा तो नहीं है, समझ आ गया है? Or you can ask your doubts very specific. I'm keep reading. My objective is not just rush and clear teach many questions. My objective is कि तुम्हें बात तो समझ में आए यार। अगर परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो समझ तो आए परसेंटेज क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, because questions are unlimited. So if your fundamentals are clear, you can crack it easily. Fine. We'll discuss one more question. So this was facts with assumptions. All right. So now, arguments. What is argument? Next questions लिए मैंने, वैसे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम ये थोड़ा सा मैं बेस बना देता हूँ। डिबेट इज आर्ग्यूमेंट। देखो इसमें बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है, अगर समझ गए तो बात बन जाएगी। देखो अजम्पशन, कुछ काम, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन से पहले, अजम्पशन एक्शन से पहले की स्टेट है, राइट? क्योंकि एक्शन तो आप लोगे प्रेजेंट में, और एक्शंस लेने से पहले आप अज्यूम कर रहे हो, तभी तो आप एक्शन ले रहे हो, राइट? तो पहले क्या किया आपने? यू अज्यूम, राइट? देन यू आर्ग्यूड। नहीं, गुनगुन, आर्ग्यूमेंट एक्शन के बाद आर्ग्यूमेंट्स, हाँ एक्शन के बाद भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और एक्शन से पहले भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि वॉट एवर एक्शन यू आर गोइंग टू टेक इट, दिस इज वैलिड और नॉट वैलिड, ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे तुम्हें क्लैट की प्रिपरेशन करवानी है या तुम्हें क्लैट की प्रिपरेशन करनी है,
तो तुम एग्जाम निकालने के बाद तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तुम डिस्कस करोगी, या प्रिपरेशन करने से पहले डिस्कस किया है कि यार 12th के बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्लैट करना है, मुझे नीट करना है, मुझे बीबीए करना है, मुझे एचएम करना है, यू डिस्कस बिफोर और यू आर डिस्कसिंग आफ्टर? बिफोर, राइट? तो जब आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी एक्शन से पहले ही होते हैं। जैसे अब इफ यू टेक सुशांत केस, राइट, इस पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, राइट? तो आर्ग्यूमेंट्स क्या दिखाता है कि जो आप होता है कि जो आप एक्शन ले रहे हो, इसलिए आर्ग्यूमेंट इज नेवर राइट एंड रॉन्ग, एंड आर्ग्यूमेंट्स इज द ब्यूटी ऑफ ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, राइट? जैसे आप कुछ जानते हो, दूसरा कुछ जानता है, राइट? सो आर्ग्यूमेंट कभी राइट रॉन्ग नहीं होता, आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक। तो आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग कब होगा, किस आर्ग्यूमेंट्स को आप स्ट्रॉन्ग बोलते हैं? व्हेन दिस इज विद फैक्ट्स एंड फिगर, विद लॉजिक। और किस आर्ग्यूमेंट्स को आप वीक बोलते हैं कि भाई कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो स्टेटमेंट को वीकेन करते होंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करते होंगे। तो एक क्लास और ली थी मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की, तो उसमें मैंने लॉजिक और इलॉजिक सिखाया था। हाँ ऋषिकेश, सही बता रहे हो तुम, लॉजिक एंड इलॉजिक सिखाया था। लॉजिक तो वही है विच यूज फैक्ट्स, इट्स नॉट इमोशनल, एंड प्रूविंग कि दिस इज राइट एंड व्हाई दिस इज राइट। अब टुगेदर और नॉट, राइट? तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी, आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड like inferences are extremely important for the for the CLAT, right? So this type of critical reasoning and another will take next and next to next class. In 2 classes we'll complete both. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you.